Hey dear friends, welcome back again. My name is Ritesh and welcome to the Achievers Education. So today will be again continuing forward of the same part 3A of the chapter Development of Economics class 10. So we have to now discuss about the body mass index that is shown to us here, as you can see on the screen there. Now, what is the meaning of body mass index? Usually questions are not asked on body mass index in the exam, but then still you never know, they might ask a question on this, maybe a definition of it. So therefore you have to study this topic, right? Okay, body mass index. Now body mass index is nothing but just a way to measure, whether you are fat or or whether you are undernourished or whether you are overnourished, all of that. Okay, so let us see what is the definitions which are given there. Body mass index is a measure of body fat based on height and weight that applies to adult men and women. दरअसल बॉडी मास इंडेक्स एक प्रकार का स्केल है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि आप कुपोषित हो. कुपोषित मतलब आपको सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है. ओके, ऑलराइट, और यू आर ओवर नरिश्ड. ओके, या फिर आपको काफी अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर आप ओबीज है, मोटापे के शिकार है, एंड सो ऑन. और ये हमको ये भी बताता है कि वेदर यू आर हैविंग अ नॉर्मल बॉडी ऑल्सो और नॉट. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. Let us see the second definition also. Body mass index is just a way to roughly see your underweight, average, overweight or obese. Okay, so ये सारी कैटेगरीज होती है हमारी. या तो हम बहुत कुपोषित दिखते हैं, या तो हम लोग नॉर्मल दिखते हैं, या फिर हम लोग बहुत ही ओबीस दिखते हैं, या फिर बहुत मोटापे का शिकार हुए, ऐसे कुछ हम लोग दिखते हैं, राइट? सो हमको ये चीजें अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम किसी भी इंसान का बीएमआई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है. वी आर गिवन अ फॉर्मूला ऑफ बीएमआई, दैट इज वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर. ओके, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर. किसी भी एक लेमैन का आप अगर आपको खुद का बीएमआई भी चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है, उसको डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, मतलब हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, और हमको हाइट जो है मीटर्स में लेनी पड़ेगी, राइट? और ये डिवाइड करने के बाद में आपके पास में जो भी आंसर आता है वो अगर इन पैरामीटर्स में जहां पर भी फिट होता है तो आपको हम लोग ये जो चीजें बताई गई है वो हम बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका 18.5 के नीचे में आता है. इफ योर बीएमआई कम्स बिलो 18.5 दैट मींस यू आर अंडरवेट, आपको कुछ वेट गेन करने की जरूरत है. If your BMI is from 18.5 to 24.9 that means you are normal weight, आप अपने ideal weight category में हो. If your BMI is above 25 and till 29.9 that means you are overweight. Okay, and if your BMI is from 30 to 34.9 that means obesity class 1, आप एक मोटापे के शिकार के एक पर्टिकुलर क्लास होती है उसमें आप आगे हो. ओके, and if your BMI is 35 and 39.9 that means you are in obesity class 2, and if it is above 40 that means extreme obesity, आप बहुत ज्यादा obese हो, right? And you all know what is the meaning of obesity. when the amount of fat percentage increases in your body, तो ऐसे body to such kind of bodies what do we call? obese bodies, right? So आप in general अगर मैं कहूँ तो जो मोटापे के जो शिकार हुए लोग जिनके बॉडी में बहुत फैट होता है, those people are called as obese people, right? Now that was all about BMI. Now let us also understand about the Human Development Index, that is HDI. HDI का मतलब क्या होता है? So it is a tool used to measure a country's overall achievement in its social and economic dimensions. Okay, HDI भी एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, वहां के ह्यूमंस का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, किन सारे टर्म्स में, इनकम के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में. ऑलराइट, सो हम देखते हैं, राइट? डेफिनेशन विच इज गिवन टू अस. सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट statistics of life expectancy, education, per capita income indicators, which is used to rank countries into 4 tiers of human development. All right, 4 टायर्स है, 4 लेवल्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के. ओके, सो इसमें हम लोग एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भाग पढ़ेंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री में वहां के लोगों की जीने की क्षमता, या फिर जीने के कितने साल तक ऑन एन एवरेज वहां के लोग जीते हैं, राइट? है ना? सो आवर कंट्रीज इट इज लाइक हमारे कंट्री में 68 जो है दैट इज द मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब इसके आगे लोग जीते तो है, बट देन देर आर वेरी फ्यू, राइट? देर आर नॉट मेनी. हर कोई 68 के आगे क्रॉस नहीं हो पा रहा है, राइट? दिस इज द राइट नाउस कंडीशन. ओके, अभी की कंडीशन की बात है. आज से 20 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कुछ अलग ही थी, राइट? So the Human Development Index is a measure of economic development and economic welfare also.
ओके। और ना ही सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग इनकम भी देखते हैं। वी आर ऑल्सो मेजरिंग द एजुकेशन ऑफ द कंट्री एंड सो मेनी थिंग्स, ओके। सो इससे हम लोग को समझ में आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ रैंकिंग्स दी है। नॉर्वे जो है इनकी रैंकिंग सबसे टॉप पे, यहाँ के लोग काफी साल तक जीते हैं, ओके। स्विट्जरलैंड देन इट कम्स सेकंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ आयरलैंड, जर्मनी, ओके। 13 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, 14 नंबर पे यूके है, इंग्लैंड, राइट। सो हमारी इंडिया का नंबर कहाँ पे लगता है, ओके। और इंडिया इज रैंकिंग 138 अकॉर्डिंग टू 2018 का एचडीआई के हिसाब से, ओके। सो ये ब्रिक्स नेशन के बारे में बात है। ब्राजील, आर से रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नेशन, ओके। या नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे इंडिया में कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी भी इंसान का? 68.68, ओके, 68.8, ओके। इतना ही यूजुअली हमारे यहाँ के कंट्री में जी पाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, ओके। एंड आई आल्सो सेड दैट ग्रॉस कैपिटा इनकम के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 2018 के हिसाब से 6,353 है, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल, चिल्ड्रन हु आर गोइंग एट द एज ऑफ गोइंग टू द स्कूल एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, ओके। सो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है यूजुअली मतलब 12 साल तक तो कंपल्सरीली जाते ही जाते हैं स्कूल, जैसा बोल रहे हैं, राइट। सो ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचडीआई, ओके। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू ऑल्सो माइट हैव हर्ड अबाउट दिस particular term before also in the lower classes, but then again we have to study this thing right here. So what is the meaning of sustainable development? As you can see, ये पिक्चर से आप समझा सकते हो कि हमें ये तीनों चीजों को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना है, ओके। नेचर भी, इंडस्ट्री भी, ओके, टाउनशिप भी, ओके, आई मीन पीपल का हैबिटेट भी, इन सभी चीजों में एक बैलेंस बहना चाहिए, राइट, ओके। लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. If I have to tell you this thing in Hindi, that हमको अपने रिसोर्सेज जो है, हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है, वाटर, सनलाइट, ओके, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हमको इन चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, राइट, वो भी इन चीजों को इस्तेमाल कर सके. वी कैन नॉट यूज देम लिबरली, या फिर एक्स्ट्रा या फिर ओवर यूज नहीं कर सकते. हमें जितना चाहिए उस तरीके से हमें उतना इस्तेमाल करना चाहिए. ओनली देन इट विल बी रिमेनिंग फॉर दी फ्यूचर जनरेशंस, राइट. That is what called as sustainable development. I have provided you with some more extra knowledge here. That is, Gro Harlem Brundtland was the first who introduced the concept of sustainable development in 1987. He was then the Prime Minister of Norway and Chairman of World Commission on Environment and Development. Okay, so उन्होंने introduce किया था Gro Harlem Brundtland ने. Okay, so I hope you have understood sustainable development. Now let us understand what is, see how sustainable development can also be only be possible when we use our resources properly. Now what type of resources do we have in our country? दो प्रकार के होते हैं, renewable resources and non-renewable resources. Very common topic which many of you might have heard. Renewable मतलब जिन चीजों को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, and non-renewable मतलब which we cannot use it, एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है. Okay, let us see what is the meaning of this very quickly. Okay, the resources that can be reproduced by reproduction are called as renewable resource. जो reproduce कर सकते हैं हम लोग उसे renewable बोलेंगे, and those which cannot be reproduced, that is called as non-renewable. Renewable resources are inexhaustible, मतलब ये खत्म नहीं होती है, इनको एक बार यूज करने के बाद में खत्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, आज हमने सनलाइट इस्तेमाल करी, वो कल खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, इट इज स्टिल अवेलेबल टू अस. वाटर आज हमने इस्तेमाल किया, कल खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, इट विल बी स्टिल अवेलेबल टू अस. ओके, वेयरएज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल. कोल, आज मैंने कोल जला दिया, कल मुझे फिर से मिलेगा क्या कोल? नहीं. ओके, सो ऑफ कोर्स मेरे पास में स्टॉक में जरूर होगा, बट देन जो मैंने यूज किया वही मुझे फिर से मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज वो एग्जॉस्ट हो चुका है. थर्ड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इन ये रिसोर्सेज को कितना भी हम लोग यूज करें, ओके, ह्यूमंस यूज करें, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल सनलाइट हम कितना यूज करते हैं, एवरी डे वी यूज सो मच ऑफ सनलाइट, बट इज इट अफेक्टिंग ऑन द सन? नो. ओके, वाटर, ओके, सो मच वी आर यूजिंग, इज इट अफेक्टिंग ऑन द ओशंस? नो, राइट. सो इस तरीके से, बट वेयरएज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अफेक्टेड. कोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज रोज, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? कोल की जो संख्या है वो कम होते जा रही है. ओके, नेचुरल गैस हम लोग यूज कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, राइट. दैट इज व्हाट द थिंग इज. दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब ये इनका एक ऑल्टरनेटिव होता है. ओके, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है कि
हम ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. ओके, हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिव है. सोलर सन की रेस से हम लोग सोलर एनर्जी बनाते हैं, वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इजंट इट. ग्राउंड से, अर्थ से हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं. ऑल ऑफ दिस थिंग. ओके, वेयर दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमने इनको एक बार यूज किया, हम इसके बाद में इनका कुछ नहीं कर सकते, राइट? Similar, for example, given here is wind, solar energy, hydro energy, and here examples are coal, petroleum, natural gas. I hope you understood all of the topics here, and I was able to explain it to you quite properly. And you can see the examples also which I have mentioned here. See, hydropower. Okay, again it gives us energy, solar energy, biomass energy. Plant से हम लोग biogas plant बना के कर सकते हैं. Wind energy also is there. Geothermal energy जो हम लोग ground से लेते हैं. Whereas non-renewable resources, okay, fossil fuels, okay, जितना भी हमको fossil fuel मिलता है, coal, petroleum, ये सारे चीजें fossil fuels में आते हैं. okay, nuclear energy भी जो है एक बार हम लोग ने इस्तेमाल कर ली, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग. of course we can develop it more, but we cannot reuse that thing. Natural gas also, all of these things. I hope you have understood that thing, right? Okay, so thank you so much for watching this video till here. Please also go and watch my English speaking videos as well. I am introducing it to you all, English Master English Communication and Public Speaking program. In that also you can use those videos and learn, become an effective communicator, become an effective public speaker also, right? So you go and take the massive learnings that you can take. Thank you so much for watching the videos till here. Have a good time. This is Ritesh Chandekar signing off. Have a good day.